Hello friends, once again welcome to our channel. Today we are going to start lesson number 8, that is metallurgy. Few of the topics have been deleted for this year's syllabus, and that is, देखिए शुरुआत में क्या दिया हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये दोनों टॉपिक्स डिलीटेड है. उसके बाद में सीधे सीधे आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे. तो बात करते हैं कि मेटल्स जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली और पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म करते हैं वो, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ओके, व्हाई? बिकॉज दे आर लूजिंग electrons, which means they are having positive charges in them. Okay, there is a reaction of combustion of a metal sample held on a spatula. I think ये वाला experiment हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि that if we hold magnesium ribbon and if we burn it on a burner, so उससे फॉर्म क्या हो रहा है कि जब हम मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हीट करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिमिलरली व्हेनेवर यू take any kind of metal and when it reacts with oxygen, when it reacts with our normal air, it gets converted into metal oxide. Okay, the same reactions are given over here. Like यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैग्नीशियम का जो पार्ट देख रहे हो आप, हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था. अगर हम इसको वाटर में फॉर्म, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम लोग इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या होने वाला है, तो वो फॉर्म होता है हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. ओके, फॉर्म एन अल्कली, दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड. सो दो रिएक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स magnesium oxide, and when this magnesium oxide is being treated with water or reacts with water, it reacts with water to form magnesium hydroxide over here. Okay, one more reaction is there, that is sodium when reacts with oxygen, it readily catches fire. Okay, so sodium is very highly reactive. If you keep it at a room temperature and it gets converted into sodium oxide, but a lot of fire can happen while the reaction is going on. So to prevent this accident, in laboratory it is kept in kerosene. Okay, that's it. So after, if we have sodium oxide and when we react it with water, the same process will happen what we discussed earlier, that is in magnesium oxide, when magnesium oxide reacts with water, it forms magnesium hydroxide. Similarly, when sodium oxide reacts with water, here it will form sodium hydroxide. Okay, moving further with the reaction of metals with water, we have calcium. When reacts with water, it forms calcium hydroxide and H2 gas is evolved, which means hydrogen gas is being evolved. So here, if aluminium reacts with water, it will form aluminium oxide, iron oxide or ferrous oxide, zinc oxide, and in each reaction we can see that hydrogen gas is being evolved. Okay, but there are some more key points to it. When aluminium, iron or zinc, okay, aluminium, iron and zinc, they do not react with cold or hot water, but they definitely react with steam to form their oxides. Remember that they will not react with the normal room temperature water or cold water or hot water. They will only react with steam. ओके, स्टीम के साथ ही रिएक्ट होते हैं, तभी उनके ऑक्साइड्स फॉर्म हो सकते हैं और तभी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकती है. रिमेंबर दैट कैल्शियम reacts very slowly with water, okay, and very less vigorously. Also, we can see that whenever calcium is being dipped in water, it starts floating, or it forms a lot of bubbles and the metal floats on the water. This is because the hydrogen gas is evolving, taking the powder of that metal to float on the water. Okay.
So moving further, we have reactions of metal with oxygen. Okay, magnesium is more reactive than aluminium, than zinc, than iron. Okay, here are some of the reactions with reaction of metals with the dilute acids. Okay, one of the reaction we have done in our laboratory, that is when we take magnesium, aluminium or iron or zinc, and when we react all these metals with acid, suppose we have HCl over here, it will form a magnesium chloride or an aluminium chloride or an iron chloride or zinc chloride. We get hydrogen gas. Okay, hydrogen gas is evolved in each of the given reactions. Okay, same thing is there. Instead of taking oxygen instead of taking water, we are taking hydrochloric acid right now. We can even use sulfuric acid or dilute sulfuric acid. We have done this reaction in our laboratory with zinc granules and dilute H2SO4, where we can see the bubbles coming out. The bubbles are nothing but the hydrogen gas. Okay, moving further, we have, if we react metals with nitric acid, what will happen? In this chapter many of the reactions are there. We will see that copper, when reacts with nitric acid, it will give copper nitrate. Then NO2 is there, nitrogen dioxide, and then we have water. Okay, oxides of nitrogen is N2O, NO, NO2. Remember that. Okay, one more important thing is there, aqua regia. It is one of the dangerous substances, or they are highly corrosive and fuming liquid. अब एक्वा रेजिया जो है वो कैसे बनाया जाता है? तो एक्वा रेजिया जो है भाई बनाया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और नाइट्रिक एसिड के रेशियोज को लेके बनाया जाता है. HCl जो है 3:1 के रेशियो में 3 पार्ट HCl का होता है, 1 पार्ट जो है नाइट्रिक एसिड का होता है. इनको मिक्स करने के बाद बनता है एक्वा रेजिया, जो कि बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत खतरनाक है वो. क्यों? क्योंकि वो नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम, जिन पे कोई रिएक्शन नहीं होता, उनके ऑक्साइड्स जल्दी फॉर्म नहीं होते, ये ऐसे मेटल्स तक उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं उसके अंदर. तो एक्वा रेजिया बहुत ही एक खतरनाक सब्सटेंस है. एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको उसके ऊपर. ओके, It should be performed in a fume with gloves. Greetings, scholars. In this video, ओके, यहाँ पे आपको एक्वा रेजिया जो सॉल्यूशन है वो दिखाई दे रहा है. देखिए कॉइन रखा हुआ है, गोल्ड कॉइन है. now we add 10 milliliters of concentrated hydrochloric acid. 10 ml एक्वा रेजिया लिया है. देखिए थोड़ी ही देर में 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 ml ऑफ. Gently heated to speed up the reaction. ओके, देखिए रिएक्शन देखिए आप, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है. किस तरीके से जो गोल्ड मेटल जो है, इवन यू कैन सी ओवर हियर यू कैन सी दैट. What's happening here is that the nitric acid is first oxidizing the surface of the gold. Then the chloride ions in hydrochloric acid. Gold is getting melted or gold is getting dissolved in it. Away into solution. The nitric acid then further oxidizes the surface, and the process repeats. Other oxidants also work, but nitric acid is along with some. This that looks like. इसको हम थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि थोड़ी देर में रिएक्शन कैसा होता है. We have destroyed. देखिए पूरा जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है. ओके, इस तरीके से एक्वा रेजिया जो है वो काम करता है. ओके, चलिए बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की. तो मेटल्स किस तरीके से रिएक्टिव होते हैं? देखिए दो चीजें हैं, मेटल ए और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, दोनों चीजें हैं. अब सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी है, जब रिएक्शन होगा तो मेटल ए के साथ फॉर्म होगा वो उसका मेटल ए का सॉल्ट सोल्यूशन, और मेटल बी जो है वो सेपरेट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा. अब ये कैसे हुआ? क्योंकि मेटल ए एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बी से, इसलिए मेटल ए ने
बी का जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसको डिस्प्लेस कर दिया। ओके, बी मेटल बी को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो लो रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करते हैं, इसलिए वो रिएक्शन हो सकता है। आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट, ऐसे हम लोगों ने रिएक्शंस देखे हुए पहले भी। और यहाँ पे आपको फिगर 8.5 में पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। ओके, रिएक्ट्स विद वाटर में दिया हुआ है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, ये वाटर के साथ अच्छे से रिएक्ट करते हैं। अगर एसिड्स अगर देखते हैं हम लोग तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज है। ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो ऊपर के रिएक्ट्स विद वाटर वाले जो है ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब आप पिंक पे आ जाते हो, मतलब कि मैग्नीशियम से लेड तक देखते हो, तो थोड़े से मॉडरेट रिएक्टिविटी हो जाती है उनकी। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर ये और कम रिएक्टिव। गोल्ड तो बहुत ही कम रिएक्टिव है। ओके, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स, ऐसे 3 तरीके के मेटल्स जो है वो अरेंज किए गए हैं इन द रिएक्टिविटी सीरीज। बात करते हैं आगे के टॉपिक की, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अब मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं देखते हैं। नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन जो है वो कोई भी केमिकल रिएक्शंस में किसी भी तरीके का कोई पार्ट नहीं लेते। So far we have seen from the reactions of metals that cations are formed by oxidation of metals. If we look into the electronic configuration of some metals and non-metals, it will be seen that the driving force behind the reaction is to attain an electronic configuration of the noble gas with complete octet. Metals do this by losing electrons, while non-metals do this by gaining electrons. ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि metals जो है वो electrons lose करते हैं, they are electropositive, और non-metals जो है वो electrons को gain करते हैं, which means they are electronegative. नोबल गैस का जो है देखा जाए तो उनका शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल, वो कंप्लीट होता है। दैट इज व्हाई दे आर केमिकली इनर्ट, इसलिए वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी तरीके का कोई पार्ट नहीं होता। देखा जाए तो मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं, इसलिए उनके बीच में रिएक्शंस होना पॉसिबल है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर सोडियम और क्लोरीन हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एक दूसरे के साथ तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। ओके, वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसके भी आप रिएक्शंस कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, तो पहला ही टॉपिक जो है वो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन वो कैंसिल किया गया है, सीधे सीधे वाटर पे आ जाते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो ज्यादातर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते एक्सेप्ट फॉर द हैलोजेंस, दैट इज क्लोरीन जैसे कि है एक हैलोजन है। क्लोरीन जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम लोग तो HOCl और HCl फॉर्म होता है। वैसे ही डाइल्यूट एसिड्स नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, वापस वही सेम कि हैलोजेंस जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोब्रोमिक एसिड फॉर्म होता है अगर हम क्लोरीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड में रिएक्ट करवाए तो हमें मिलेगा हाइड्रोब्रोमिक, दैट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, और हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट होता है तो फॉर्म होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रोमीन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सेपरेट होता है यहाँ पे ब्रोमीन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, अब ये भी देख लेते हैं ये क्या है। नॉन मेटल्स जो है दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशंस। 3 चीजें जरूरी है। पहला है टेम्परेचर होना चाहिए प्रॉपर, प्रेशर, और यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं? तो कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन को वो फास्ट कर देते हैं। रिएक्शन जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लेता, जल्द से जल्द रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, इसलिए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। ओके, चलो अब आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम 2 यूनिट्स, दैट इज कैटायन और एनायन, आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, जिसमें कैटायंस और एनायंस होते हैं उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कैटायंस और एनायंस जो है दोनों ऑपोजिटली चार्ज है,
इसलिए इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। इस अट्रैक्शन की वजह से एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, cations and anions in a compound and magnitude of electric charge on them is such that positive and negative charges balance each other. As a result, ionic compounds are electrically neutral. ओके, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स जो है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इनमें कोई चार्जेस नहीं होंगे क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस करने की हमेशा कोशिश करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो है वो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, स्मूथ शाइनी सरफेस हो सकता है उनका, डेफिनेट शेप होता है, सिर्फ क्रिस्टलाइन नेचर जो है। अब ये क्रिस्टलाइन नेचर या फिर क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, तो पहला है साइज ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, दूसरा है फैक्टर की मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द आयन। ओके, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, उस बेसिस के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेबरिंग आयंस विद अपोजिट चार्जेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट्स, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो है आयनिक कंपाउंड्स का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। साथ ही साथ ये ऐसे आयनिक कंपाउंड जो है दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, बहुत ही हार्ड होते हैं, ओके, इजीली टूट नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि कोई सॉल्ट सैंपल है जिसको बर्नर पे हीट किया जा रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव फोर्स between the positively and negatively charged ions is strong. ओके, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो ब्रिटल है और दे कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू पीसेस। सॉरी, मैंने ऊपर जो है आपको बोला था हार्ड और वो इजीली टूटते नहीं है, ब्रिटल जो है टूट जाते हैं जल्दी। ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाना। दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस जस्ट बाय अप्लाइंग the small pressure. Okay, intermolecular force of attraction. Okay, intermolecular force of attraction is high in ionic compounds. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है आयोनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया गया है जो कि बहुत हाई है। लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये और प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड की। और साथ ही साथ अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स के और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं तो वो है दे आर वाटर सॉल्युबल। ओके, this is because water molecule orient in a particular manner around the ion separated by dissociation process. Dissociation process के through water जो है ionic compounds को dissolve कर सकता है। तो न्यू फोर्स ऑफ, इसकी वजह से क्या होगा कि न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आयंस के बीच में इस्टेब्लिश होगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स के आसपास सराउंड कर रहे हैं। हाँ, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, इसमें इनसॉल्युबल है, इसमें मिक्स नहीं होते अच्छी तरीके से। दिस इज बिकॉज अनलाइक वाटर न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश इन दीज सॉल्वेंट। जैसे वाटर में न्यू अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है, एस्टैब्लिश होता है, वैसा सॉल्वेंट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड विद द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स जो है दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब वो सॉलिड स्टेट में है। ओके, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस जो है वो अपने प्लेसेस को लीव नहीं करते, इस वजह से या तो हमें इनको फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा ताकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ऑन हो सके। ओके, बात करते हैं मेटलर्जी।
The science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy. तो metallurgy का definition क्या था कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर्स में से और उनको प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, उनका प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है मेटलर्जी. अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या है. बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में नेचर में दे आर नॉट रिएक्टिव but they are found in combined state as their salts such as oxides, carbonates, sulfides, nitrates. ये सारी चीजें जो है हमारी अर्थ में present. However, most unreactive metals that are not affected by air, water and other natural factors like silver, gold, platinum generally occur in free state. तो ये silver, gold, platinum जो है ये free state में है, इनका कोई ऑक्साइड नहीं है, कोई कार्बोनेट नहीं है. Compounds of metals that occur in nature along with impurities are called minerals. तो minerals क्या है? minerals है ऐसे metals जो impurities के साथ में nature में present है, उन्हें कहा जाता है minerals. minerals जो है वो minerals from which the metals can be separated economically are called ores. ores वो है वो minerals है जिसमें से हम लोग metals को separate कर सकते हैं. ores में बहुत सारी impurities होती है जैसे कि soil, sand, rocky substances, उसके साथ में मेटल कंपाउंड्स भी होते हैं. इम्प्योरिटीज को हम गैंग क्यू बोलते हैं. मेटल्स जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं. सेपरेशन, अलग अलग सेपरेशन के मेथड्स यूज किए जाते हैं. ओर्स जो है वो कैसे निकाले जाते हैं? तो ओर्स जो है वो माइनिंग करके निकाले जाते हैं. इसमें जो है इम्प्योरिटीज बहुत सारी होती है पहले से. फिर हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस भी करते हैं. ये सारे एंटायर प्रोसेसेस जो है इनको कलेक्टिवली बोला जाता है मेटलर्जी. अब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी क्या क्या है? तो जो प्योर मेटल है इट इज ऑब्टेन बाय ओर बाय द फॉलोइंग स्टेजेस. सबसे पहला है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. हाँ, अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आप माइनिंग करते हो और वहाँ पर बहुत ही कम मेटल उस ओर में से निकल रहा है तो दिस वुड बी वेरी एक्सपेंसिव. जो आपका कॉस्ट है एक्सट्रैक्शन का वो बहुत बढ़ता जाएगा और इस वजह से आपको इसमें से कुछ पैसे नहीं निकलेंगे. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. सबसे पहले अलग अलग जगहों पर सर्च किया जाता है वेरियस टेक्नोलॉजी और टूल्स यूज करके कि कहाँ पे किस तरीके का मेटल जो है वो ज़्यादा मिल सकता है. Various ways are used for this purpose. To extract way to be used depends on the physical properties of the metals present in the ores. It also depends upon the reactivity of the metal and facilities available for purification. Various factors that could be responsible for the environmental pollution are also considered. Some general methods for the concentration of ores are as follows. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अलग अलग मेथड्स दिए हुए कि concentration of ores के लिए कौन से मेथड यूज. सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. हेवी पार्टिकल्स ऑफ ores can be easily separated from the light particles of gangue by gravitational method. तो सबसे पहला है विल्फली टेबल मेथड. इसके बारे में बात करते हैं. चलिए, बहुत ही इजी मेथड है ये विल्फली टेबल मेथड. यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है जैसे कि ये है ये पार्ट पाउडर्ड ओर. ये जो तीन कंपार्टमेंट से यहाँ से पाउडर्ड ओर जो है वो डाला जाता है. यहाँ पर ये जो येलो कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द वुडन रिफल्स. ये वाइब्रेटिंग टेबल है और यहाँ पर देखिए यहाँ पे कंपार्टमेंट छोटे छोटे बने हुए, स्टेप्स बने हुए हैं. यहाँ से जब पाउडर्ड ओर आ रहा है साथ ही साथ उसके वाटर भी स्प्रिंकल किया जाता है. वाटर की वजह से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज जो है दे आर लाइट इन वेट. दैट इज वाई वो सीधे सीधे यहाँ पर वाइब्रेट होते होते यहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाती है. और कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो है वो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि वो हैवी है. तो हैवी होने की वजह से कॉन्सेंट्रेटेड ओर एक ही बार में एक जगह पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है. हैवी होता है मेटल, इस वजह से हेवी मेटल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. और जो गैंग है, गैंग्यू जिसको बोला जाता है, जो इम्प्योरिटीज है वो सारी इस वाइब्रेटिंग टेबल से नीचे होते हुए
एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है। विल्फली टेबल मेथड फर्स्ट था। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड की। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको जो ये फिगर है वो एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। ओके, हाइड्रोलिक सेपरेशन की बात कर रहे थे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक सेपरेशन में क्या होता है, यहाँ से नीचे की तरफ से जो है वाटर जो है अंदर की तरफ फ्लो होते हुए जाता है। ठीक है, ये टैंक जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा टैंक जो है, पूरा टैंक, दिस इज द टैंक। इसमें पाउडर्ड ओर जो है यहाँ से पोर किया जाता है और वाटर कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो होता रहता है। ओके, फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टैंक फ्रॉम द लोअर साइड। यहाँ से बहुत ही फोर्स में पानी आ रहा है। ओके, पानी आने की वजह से क्या होता है कि फोर्स की वजह से ये पाउडर्ड ओर में की जो इम्प्योरिटीज है, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज लाइट होने की वजह से ऊपर ही रह जाती है और जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो नीचे की तरफ आता है क्योंकि वो हैवी है। ओके, हैवी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर वो इम्प्योरिटीज आएगी, यहाँ से सॉरी यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं नीचे की तरफ से क्योंकि वो हैवी है। और लाइट इम्प्योरिटीज या फिर जो गैंग्यू है वो हम लोग एक ऊपर की तरफ से जो इनलेट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें मैं एरोज ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से हम लोग उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक क्यों, क्योंकि एक बहुत ही प्रेशर में एक जेट वाटर जेट इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द लोअर आउटलेट ऑफ द टैंक। ओके, पार्टिकल्स इस तरीके से सेपरेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए क्या जरूरी है, एक तो मैग्नेटिक रोलर की जरूरत है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन की जरूरत है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक रोलर, मतलब कि ये जो पूरा पार्ट है वो बना हुआ है हमारा मैग्नेट से। ठीक है, ये जो रेड कलर में मैं बता रहा हूँ दिस इज अ मैग्नेट रोलर। और यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट लगाया जाता है। अब क्या होता है कि ये नॉन मैग्नेटिक रोलर ऊपर की तरफ से कन्वेयर बेल्ट जो होता है, यहाँ से हम लोग ओर्स को, पाउडर्ड ओर को डालना शुरू करते हैं। अब ये रोल हो रहा है तो इसके ऊपर से जो इम्प्योरिटीज के साथ वाला जो मेटल है वो रोल होते हुए यहाँ पे आएगा। लेकिन होगा क्या, इस तरफ अंदर की तरफ जो हमारा मैग्नेट है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो मेटल जो है, कॉन्सेंट्रेटेड मेटल या कॉन्सेंट्रेटेड और उस पर चिपक जाएगा और बाकी की इम्प्योरिटीज जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो तो नॉन मैग्नेटिक होती है, इसलिए वो सीधे यहाँ पे आके इस कंटेनर में गिर जाएगी, कलेक्टर में। ओके, नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट यहाँ पे आ गया और मैग्नेटिक जो था, मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट मतलब क्या, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर, वो यहाँ पे आके गिर गया। तो इस तरीके से किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके, अब बात करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन टू ऑपोजिट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक समझना जरूरी है इसके लिए। चलिए, मैंने जैसे बोला था कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों प्रॉपर्टीज समझना जरूरी है, तो इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रोफोबिक वो है जो वाटर में इजीली मिक्स नहीं होता, डज नॉट गेट मिक्स विद वाटर। ओके, और हाइड्रोफिलिक क्या है कि हाइड्रोफिलिक वो सब्सटेंसेस जो वाटर में बहुत ही इजीली मिक्स हो जाते हैं। अब आप अगर एग्जांपल लो, अगर मड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मड में आपको मालूम है कि भाई वाटर है, वाटर के साथ में क्या मिक्स हो गया, वाटर के साथ में इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई, मतलब कि सॉइल जो है वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। लेकिन अगर मैं किसी वाटर में ऑयल ड्रॉपलेट्स डाल दूं तो आप लोग हमेशा देखते हो कि ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट होते हुए दिखता है ना, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है और वो वाटर में इजीली मिक्स नहीं होता। इसलिए इन दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग ओर्स में से कॉन्सेंट्रेटेड मेटल्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब फ्रॉथ का मतलब क्या है कि फ्रॉथ में यहाँ पर आप फिगर की तरफ आ जाते हो तो देखिए ये जो फ्रॉथ है यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़े से बबल्स और झाग के जैसा फॉर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है,
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर में यहाँ पर ऑयल और वाटर पाइन ऑयल का मिक्सचर डाला हुआ है। आप लोग वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हो, सर्टन वेजिटेबल ऑयल सच एज पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है, नीलगिरी तेल जिसको भी बोला जाता है, नीलगिरी तेल, यूकेलिप्टस। तो ऐसे केस में हम लोग ऑयल जो है इसमें ऐड करते हैं। ऑयल ऐड होने के बाद यहाँ पर ये जो एजिटेटर है इसको घुमाया जाता है, घुमाते रहते हैं इसको। घुमाने की वजह से क्या होता है कि ये जो पानी जो है और ऑयल जो है ये बबल्स फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बबल्स लिखा हुआ है, बबल्स फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ जो हमने और इसके अंदर ऐड किया हुआ है वो और भी इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है। अब हम हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की बात करते हैं। जैसे ही पानी पूरी तरीके से मिक्स होता है और बबल्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पर बीच में कहीं पे ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, वो क्या करेंगे, ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो मेटल से चिपक जाएंगे। ओके, मेटल से चिपकते ही हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वो आ जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि वो वाटर में मिक्स होते नहीं है, वो फ्लोट करेंगे। फ्लोट करते हुए यहाँ पर जितना भी फ्रॉथ जमा हुआ उसको हम ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे, जो है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी ये चीज होगी कि भाई जो वाटर है, वाटर में इम्प्योरिटीज ही मिक्स होती है जो कि लाइट होती है वेट में, वो सॉरी एक्चुअली लाइट नहीं, मिक्स होने की वजह से वो वाटर में ही रहेगी, और वाटर में रहने की वजह से हम लोग उनको एक लोअर आउटलेट से सेपरेट कर सकते हैं। Particles of certain sulfide ore float with foam on water as they preferentially get wetted by the oil। तो यहाँ पर सल्फाइड ओर्स जो है ज्यादातर इस मेथड से सल्फाइड ओर्स जो है उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे कि जिंक जो है, जिंक सल्फाइड, कॉपर पाइराइट, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दो मेटल्स जो है इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। लास्ट मेथड है लीचिंग, सेपरेशन मेथड्स में लास्ट मेथड, और आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक लीचिंग। लीचिंग में फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम देयर ओर्स इज द मेथड ऑफ लीचिंग। इन दिस मेथड ओर्स इज सोक्ड इन अ सर्टेन सोल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में उनको डिप किया जाता है ज्यादा टाइम के लिए। Ores जो है that they get dissolved in the solution due to specific chemical reaction। उस chemical reaction की वजह से जो हमारे ores है उसमें पूरी तरीके से dissolve हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी impurities है they does not get dissolved in the solution, क्योंकि वो react ही नहीं करते उस solution के साथ में, इसलिए वो dissolve होते ही नहीं, they does not dissolve in the solution। ओके, इससे क्या होता है, हो गया ना सेपरेशन, क्योंकि solution में जो मेटल्स है वो डिसॉल्व हो चुके हैं। ओके, इसमें एग्जांपल दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और एल्यूमिनियम ओर जो है, द एल्यूमिनियम ओर इज डन बाय लीचिंग मेथड। हियर बॉक्साइट इज सोक्ड इन एक्वियस NaOH सोल्यूशन यूज किया है। देखिए यहाँ पे बॉक्साइट ओर जो है एल्यूमिनियम में डिप किया जाता है, देखिए यहाँ पे फॉर्म हुआ। Na2CO3 भी यूज कर सकते हो आप लोग। इससे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो मिलता है एल्यूमिना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और क्या है, एल्यूमिना किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कोरोजन क्या है, उनके प्रिवेंशन कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड जो है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग ये लेसन को एंड भी करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सारी चीजें हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।